Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In this video, let's try to understand the difference between may be and maybe. May be. These are two words and इसको हम कहते हैं verb phrase. ये एक verb phrase है. इसमें जो may है that is a modal verb and जो be है that is the main verb. Okay. अब modal verb आपको पता है क्या modal verb यूज करते हैं to talk about ability, possibility, suggestion, uncertainty, etc. Okay, तो modal verb यूज करते हैं and ये जो be है that is the main verb. अब ये जो modal verbs होते हैं वो जो है उनको bare infinitives फॉलो करते हैं. मीन्स modal verb के बाद जो main verb आता है वो bare infinitive विदाउट टू यूज होता है. जैसे आप जिसको आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हो. एंड जो मॉडल वर्ब्स होते हैं दे आर लाइक हेल्पिंग वर्ब्स. उनके साथ कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. एंड ये जो है मे बी दैट इज वन वर्ड. मे बी दैट इज वन वर्ड. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. उनको नहीं पता होता कि वेदर दे आर यूजिंग मे बी और ये मे बी ये यूज कर रहे हैं. और तो वो क्या करते हैं दे कमिट मिस्टेक्स. ओके, ये जो मे बी है दैट इज वन वर्ड and it can either be an adverb or a noun. This is not a verb phrase. ये verb phrase नहीं है. ये adverb भी हो सकता है and ये noun भी हो सकता है. and इसको हम ना तो verb phrase कहते हैं and नहीं ये जो may है that is a modal verb. ये may be is one word and this is separate from may. ये may से अलग है, separate. Now let's try to understand the difference between these two with the help of examples. हम अब जो है examples को देख के इनका difference समझने की कोशिश करते हैं. So the first sentence is he may be in his office. आप may use करते हो may, might and could. When you talk about possibilities, जब आप possibilities के बारे में बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हो, कौन सा modal verb यूज करते हैं, may, might और could यूज करते हैं. So it means कि यहाँ पे ये may की जगह पे you can also use might और could. आप खुद भी यूज कर सकते हैं. So you can say he might be in his office या you can say he could be in his office. So when you express your possibilities both in present and future तो आप क्या यूज करते हो may, might and could. Okay. So he may be in his office and in the Urdu language इसका मतलब होगा कि हो सकता है वो अपनी ऑफिस में हो. It means कि you are not sure he is in his office. आपको श्योरिटी नहीं है कि वो अपनी ऑफिस में है. So that's why you are using may be. Likewise we have another sentence and that is it may be true. It may be true. Again you are talking about the possibility. आप possibility के बारे में बात कर रहे हो and जैसे ऊपर आपने जो है the first sentence में जैसे मैंने आपको बताया कि you can replace may with might or could. Likewise in this sentence as well you can replace may with might and could. आप may को might या could के साथ replace कर सकते हो and it may be true. It means कि ये हो सकता है कि ये सच हो. Again you are talking about the possibility. I have just told you कि ये जो may be that is different from may be. May be में जो may है that is a modal verb and in this situation जो may be है that is one word. ये एक ही word है and that can either be an adverb or a noun. When it's an adverb, जब ये adverb होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि when you are not sure. आप किस situation में इसको as an adverb use करते हैं? When you are not sure that something will happen. जब आपको श्योरिटी नहीं होती कि कोई चीज होगी और that something is true या कोई चीज क्या है सच है और is a correct number या कोई correct number है. Again you are talking about के मतलब you are not sure. You are talking about uncertainty. आप uncertainty के बारे में बात कर रहे हो and here maybe जो है it refers to perhaps. Maybe जो है that refers to perhaps. इस सिचुएशन में maybe का मतलब क्या होता है perhaps होता है and इसके साथ जब आप ये यूज करते हैं तो इनके साथ दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल maybe he is in his office. हो सकता है कि वो अपनी ऑफिस में हो. अब maybe it refers to perhaps. यहाँ पे इसका मतलब क्या है perhaps. तो आप कह सकते हैं perhaps he is
in his office. Okay, अब इसका जो मतलब है बेसिकली, इसका मतलब एंड इसका जो मतलब है he may be in his office, ये दोनों सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है, बट डिफरेंट इनके बीच जो डिफरेंस है वो दैट इज कि मे भी यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है, वेयर एज यहाँ पे जो मे जो है दैट इज अ मॉडल वर्ब यूज हुआ है, एंड बी जो है दैट इज द मेन वर्ब जो कि एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है कि वेदर वो अपने ऑफिस में है या नहीं है. ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. एंड इस सिचुएशन में भी अनदर सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर नॉट श्योर कि जो नंबर है दैट इज अ करेक्ट नंबर, जो नंबर है दैट इज अ करेक्ट अगेन, तो आप क्या कहते हैं, इट विल कॉस्ट टू, इट विल कॉस्ट टू मे बी 300 रुपीज. नाउ यू सी अगेन यू आर नॉट श्योर, आपको श्योरिटी नहीं है कि ये जो नंबर है टू, ये जो नंबर है टू दैट इज द करेक्ट नंबर, तो आप एक अंदाजा लगाते हो, आप कहते हो कि हो सकता है कि 200 रुपीज लगे या हो सकता है 300 रुपीज लगे. सो आप क्या यूज करते हो, इट विल कॉस्ट टू मे बी 300 रुपीज. अगेन मे बी जो है एज एन एडवर्ब इस सेंटेंस में यूज हुआ. मे बी को एज ए नाउन यूज करते हो when you talk about something that's only a possibility and not certain to happen. जस्ट अगर आप किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप क्या यूज करते हो, मे बी को एज अ नाउन यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहते हैं कि these are all maybes, there is no certainty. जो भी आप बातें सुनते हैं ना, आप कहते हैं कि बस ये इसमें कोई भी आपको यकीन जो है नहीं आता किसी पे भी, तो आप कहते हैं कि these are all maybes. हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. So these are all maybes, there is no certainty. Okay, likewise we have another sentence जैसे कि for example I don't want any ifs, buts or maybes. I don't want any ifs, buts or maybes. It means कि मुझे अगर, मगर और शायद कुछ नहीं चाहिए. जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ मुझे जो है वो जरूर जो है कोई भी मतलब वो चाहिए, जरूर चाहिए. So I hope कि आपको समझ आ गया होगा the difference between may be and maybe. If you have any question or confusion, you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.